Yes. Now you have to move on next sheet. I will let you know about the H lookup. Okay. So what is the definition of V lookup, Manpreet? सर वर्टिकली करना है किसी चीज को. No, Column. do not say vertically. You have to give me proper definition. VLOOKUP stands for vertical lookup when we need to look a value from a column. Yes. ठीक है. It will return us from columns. Yeah. And HLOOKUP is used to fetch data from rows. Horizontal order. Okay. Yes. Yes, sir. So now you have to put your pointer in A4. Okay. Here your lookup value is header. Okay. Here Yes, is your lookup value is header. So you need to apply equal to H lookup. HLOOKUP. So lookup value is your header. You need to decide what you have to freeze. Column is moving here. We have Row need to freeze. Yes. Comma. You have to go there in data set and take complete range of data. Do not leave data. anything. Go to data one. One. Take complete Including ID, reference. sir? Yes, including ID. No need to leave anything. Okay. Freeze it. Freeze. Comma. Now you can see third parameter. What is third parameter? Third parameter. Third parameter is A row index number. Right? yes, sir. Are you looking? Yes, sir. Table Remove. array after that row index. Yes, number. yes. So you have to remove A1. You have taken A1 reference last. You can Sir, see. by default, it's taken even. Okay, so you have to remove it. Even data I remove. also. Yeah. Now you have to take row number. Suppose I need to pick data for Joseph. What will be row number? It will be 810. Yes, 10. Write down 10. 10. Comma 0. 0. Enter. Now you will get information of Joseph. You have to drag in right side. No, drag in right side. Automatically you will get. As per header, you are getting data. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Now I will let you know how we can pick data in horizontal and vertical order both. So you will have to apply HLOOKUP and HLOOKUP match. You are aware about the HLOOKUP now? Now I will let you know how we can apply match function to pick the position of name. So first I let you know the match function. Here you need to pick the position of Monu, Amar, Mehdi, and Sahil. Okay. Yes, so you will get position of row number. Okay. In HLOOKUP, you will get position of row number of Monu, Amar, Mehdi, and Sahil. So you need to apply equal to match. Match. Yeah. So value Monu. Yes. Freeze here. Yes. Comma. Where you will get position of Monu, you have to go to dataset and check. So you need to take reference from where you will get position of Monu row number. B column. B column में लोगे ना, B column का पूरा reference ले लो. Okay. पूरा array ले लिया. Yes, this is a lookup array. Comma 0, enter. Now you will get row number for each name. Okay. Drag in downside. You will get row number for each name. Okay. अब यही मैच आप लगाओगे रो इंडेक्स नंबर में HLOOKUP का. You have to delete this function. Now you need to apply HLOOKUP match yourself. HLOOKUP. Lookup value. Lookup value is so what? Index number. No. Lookup value will department. be yes, department. Now need to freeze. Freeze. What's moving?
Row is moving. नो, कॉलम इज मूविंग. डिपार्टमेंट के बाद आप क्या लोगे? टोटल सैलरी लोगे ना, तो कॉलम मूव कर रहा हाँ है. जी, ठीक है. Column रो moves. मूव कर, रो फ्रीज करना है. यस, कॉमा. Table array. टेबल एरे शुड बी एंटायर डेटा सेट रेंज. ID. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फ्रीज इट, Phrase. कॉमा 0. Zero. No, sorry, match. Go there and take lookup value as a what? Name. Yes. Decide freezing. Yes, comma. Where you will get position Array. of a name. Yes, freeze it, comma 0, bracket close, comma 0 for H Zero. lookup. Enter. Now you will get data in vertical and horizontal order with the help of H lookup and match. आपने मैच लगाया तब आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही पिक कर सकते हो. शिफ्ट राइट एरो and then press Control R. No. Control R. You are getting data as per header. Now you have to remove HRA and type their ID. Remove HRA and type their ID. ID. You will get ID there. Type their ID. You can see here you are getting ID. This is a dynamic function. Okay. Yes, sir. Now Yes, sir. I have a task for you in O column. You need to pick data for January, July, March, and November in PQR column through the H lookup match. नहीं, नीचे देखो आपका लिखा हुआ है. Yes, sir. Okay, so you have to do this task yourself. Data set is available in left side, you can see. Okay, so you have to do yourself. Okay, this is your homework. Tomorrow I will check. Okay. Okay, sir. Okay. Now move on next, index match function. So I let you know, in index match function, we can pick data from left side as well as right side also. Okay. Yes, sir. So first I will let you know the normal index function. Normal index function is not more useful. Without match, index is nothing. Index function is nothing. Okay. Okay, sir. So make sure if you are not applying a match function with index, you will not get fruitful result. Okay. So first you need to put your pointer on A14. A14. Now what you have to do here, you need to apply equal to index. Okay. So what is the first parameter? Your first parameter is array. Array. Okay. So you have to go to data set and take complete range of data. Go to data 1 and take complete range of data. Okay. Freeze. Yeah, freeze. Comma. Second parameter is what? Row number. Row number. Suppose I want to pick data for Raman. So what will be row number? Row number. 30. Yes, 30. Put here 30. If you want to pick name Raman, so what will be column number? 2. Yeah, 2, enter. You will get output as a Raman. Got it? Got it? Yes, sir, got it. As per row number and column number, you are getting data. But Yes, sir. Index is not more useful without match. So what you have to do, you have given the header as a department and you have lot of name in a column. Do not go there. Okay, remove Raman first. Remove Raman. Put your pointer on B9, B7. Yes.
अब यहाँ पे मुझे रो नंबर के लिए मैच लगाना है, कॉलम नंबर हमारा मैनुअली जाएगा, डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर होगा 3. ओके, सो यू नीड टू अप्लाई इक्वल टू इंडेक्स, go there and take complete data reference, freeze it, comma match. Yes, now you have to take lookup value as a name. You have to go there and take lookup value as a name as a Rajesh. Now you need to freeze it. What will you freeze? अगर आपका रेफरेंस डाउन साइड मूव करा तो ब्लाइंडली यू हैव टू फ्रीज कॉलम, क्योंकि डाउन साइड मूव करने का मतलब रो मूवमेंट है. ठीक है, कॉलम फ्रीज करना राइट है. साइड मूव कर रहा है तो रो मूव, या राइट साइड मूव कर रहा है तो रो फ्रीज करना है, कॉलम मूवमेंट है. ओके, कॉमा. अरे नाउ लुक अप एरे वेयर यू विल गेट पोजीशन ऑफ नेम. यस, बी कॉलम, फ्रीज इट, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा. नाउ यू नीड टू पिक द कॉलम नंबर. कॉलम नंबर डिपार्टमेंट का क्या है, मैनुअली आप लिख दो 3. No, why you are taking reference? You have सर to वो remove. उसका कॉलम नंबर देखो, या कॉलम नंबर 3 है, दे दो, एंटर कर दो. अभी हमारे पास एक कॉलम है तो मैंने मैनुअली दे दिया 3. अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम रहेगा देन यू विल हैव टू पुट मैच आल्सो फॉर कॉलम नंबर. कॉलम आल्सो. ठीक है, सो यू हैव टू पुट योर पॉइंटर इन ई कॉलम. now here you have lot of column and lot of names, so you have to apply double match. Okay, Yes, with index. चलो अप्लाई करो, खुद से अप्लाई करो. Array means complete data range. Match, yes. Lookup value, yes. Do not forget about the freezing part. Freezed. Yes. Bracket close, comma, again match for header. जो VLOOKUP में मैच लगाया था अब वो वाला मैच लगेगा. हेडर का पोजीशन पिक करना है. यस. Yes, comma 0, bracket close twice, enter. Now you will get data as per header. नहीं, कुछ आपने फ्रीजिंग में गलती किया है. ठीक है, एक बार चेक करो. 1 मिनट मैं बता देता हूँ. आपने ये ठीक किया, हाँ. नहीं नहीं, सही तो है. यहाँ पे आपने लुकअप वैल्यू लिया है C1 से C50. C1 से C50 क्यों? C1 से C50 आपने क्यों लिया है? अगर आपने लुकअप वैल्यू डिपार्टमेंट लिया है तो हेडर में चेक करोगे ना पोजीशन डिपार्टमेंट का, है ना. A1 Yes, से sir. H1 लोगे रेफरेंस में. गो देयर एंड चेंज द रेफरेंस. सिर्फ वहां पे C1 के जगह पे A1 लिख दो और H50 के जगह पे H1. H50 को H1 कर दो. हाँ, अब H1 नहीं नहीं H, सॉरी H. 1 मिनट, आप C1 के जगह पे A1 करो पहले. A1 से H1 आपको रेफरेंस में लेना है क्योंकि हेडर का पोजीशन A1 से H1 में आएगा, राइट. हाँ, C1, एक काम करो, आप C1 से C50 हटाओ और जाके फिर से रेफरेंस चेक कर लो. हाँ, रिमूव डेटा 1. हाँ, गो देयर एंड टेक रेफरेंस अगेन. माउस से रखना पॉइंटर.
नहीं हो रहा, A1, मैंने वहाँ हाँ हाँ हो गया, ठीक है, फ्रीज करो, एंटर करो, नाउ यू विल गेट डेटा, फ्रीज, एंटर, एंटर, okay, drag in right side and down side, done. yes, sir. Now you have to extract data from all three sets, whatever sets is available in your data one sheet. Set 1, set 2, set 3 है, वही जो Yes, VLOOKUP sir. मैच में if error के साथ लगाओ, इंडेक्स मैच के साथ फैच करोगे ये डेटा. Okay, this is your task, you have to do yourself. Okay, now I'm Yes, sir. giving you one more task. You have to pick Yes. best bowler and best batsman through the index match. ठीक है, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया सर. नहीं नहीं, वो तो आपने VLOOKUP में नोट किया, इंडेक्स मैच से भी करना है वो. ओके, pick best bowler and best batsman through the index match. Best bowler, best batsman with index match. ठीक है, you have to do yourself. Got it, Manpreet? Yes, sir. got it. Yes, sir. got it. Now move on next sheet. This is a bit difficult sheet. Okay, so lot of hard function is here. Okay, Okay, sir. not lot of, only two hard function is here. So put your pointer in upper side. So first you have to go through the definition part, left, right, mid, substitute and replace. Here I will cover 5 functions which is very important functions of Excel. Okay, this is not more important just like VLOOKUP, but this is a very helpful function. This is a supportive function for data cleaning and data extractions. Okay, Yes, sir. so Yes. definition of left function extract number of character from left as per given parameter. So if you want to pick number of character, suppose in Manoj Kumar I want to pick 3 character from left side, what will be output? MAN? MAN. Yes. Okay, if I want to pick right side 3 character, then what will be output? Manoj Kumar? MAR. Yes, MAR. So this is the use of left and right, but here I will let you know little bit advanced use of left and right function. Okay, Yes, sir. so what you have to do, you need to pick first name and last name. Okay, so approach sir. to pick first name and last name is, first you need to pick the position of blank. So after Manoj you have blank, you have to pick the position of blank. So you need to apply equal to find inverted comma space inverted comma take reference of Manoj Kumar, enter, you will get 6. Okay, drag in downside Ravi and Ramkrishna. So you can see here in Manoj Kumar your blank position is 6, in Ravi Jha blank position is 5th, in Ramkrishna Sinha blank position is 12. Are you getting? You can count it. Yes. Yes, Okay. sir. Okay, so what you have to do, you need to do -1 at last in find function. -1 -1. at last, -1. -1. Not here, not here, not here, after bracket. After the bracket. Yes, -1. enter. This much character you have to pick from left side. For Manoj Kumar, if you want to pick Manoj, this much character you need to pick. Drag in downside function. 4 character you have to pick from left side, then you will get Ravi.
11 character you have to pick from left side in Ram Krishna, then you will get Ram Krishna. Okay. Yes, sir. Got it. So now you need to apply left function. Now you need to apply left function before find. Okay, wait. Press escape key. Now you have to apply left function before find. Before find. Yes. Take reference of Manoj Kumar. In Manoj Kumar, you have to pick number of character. Comma, enter. Enter. Yes. Drag in downside. Drag in downside. You will get Ravi Ramakrishna as a first name. Got it? लेफ्ट फंक्शन का पता था, इसका नहीं पता था फाइंड का. Sorry. और लेफ्ट फंक्शन आता था बट ऐसे नहीं पता था फाइंड के साथ कैसे यूज होगा. Yes. This is a very helpful function. Okay. This is new thing for me. Okay. Now I let Yes, you sir. know how we can pick last name. Approach to pick last name is you have to pick number of length for Manoj Kumar. Tell me how many character in Manoj Kumar, including space? 11 total 11. 11. ठीक है. अब 11 में स्पेस का पोजीशन माइनस करना है. स्पेस का पोजीशन क्या है? 6. Yes, sir. हाँ जी 6. 11 में अगर 6 माइनस कर दूं तो कितने कैरेक्टर बचते हैं? 5. अगर मैं राइट से 5 कैरेक्टर पिक कर लूं तो कुमार आ जाएगा. Yes, sir. So same approach you need to apply. You need to take equal to length. Take reference of Manoj Kumar. Bracket close. No, Manoj Kumar. Okay, you have taken. Yes, ठीक है. Minus position of space. Position of space निकालने के लिए क्या लगाते हैं? Find. Find. Yes. Find. Have inverted comma. No. You have to take inverted comma. Space, comma. Take reference of Manoj Kumar. Enter. Yes. This much character you have to pick from right side. So you need to apply right function. Before length, you need to apply right function and take reference of Manoj Kumar. Take reference of Manoj Kumar. No, pointer is moving. Press F2 and then move. Comma, enter. Done. आ गया? So now you are able to pick first name and last name. Clear है मनप्रीत? जी सर. फिर पिक करो. फर्स्ट नेम आप पिक करो. 3 words का नाम आया अब है. ठीक है. Now you have 3 words name. You have to pick first name. First name approach is same. Okay, you need to apply left find blank position. Left, yes, comma, find position of blank, comma, take reference, enter. Enter करो. अभी जानते हो आपका नाम तो पिक हो जाएगा, लेकिन जानते हो इसको कॉपी करो और पेस्ट स्पेशल वैल्यू करो राइट साइड में जाके. Paste special, I'm talking about paste special value. Copy all 3 names. All 3 names you need to take. Value. अब इसमें देखो एक स्पेस एक्स्ट्रा आया हो क्योंकि मैंने -1 नहीं किया था ना फाइंड में. देखो F2 करो मनप्रीत. किसी भी नेम नहीं. आपने फिर से ये क्या किया? मैंने वैल्यू पेस्ट करने के लिए. वैल्यू पेस्ट नहीं हुआ. नहीं वैल्यू पेस्ट नहीं हुआ है. फिर से कॉपी करो आप एंड पेस्ट स्पेशल वैल्यू. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो. तीनों नेम कॉपी करना है. values? No, first you need to copy all 3 values and paste special value. हाँ, go to paste value or paste. Yeah, paste value. Do that. अब देखो यहाँ पे yes, done. Done.
अब F2 करो, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा होगा। आ रहा है सर। नहीं नहीं, कहाँ आ रहा है? ये देखो आकाश सर। में करना, आकाश, हाँ हाँ ठीक है, आ रहा है। आकाश में भी करो। यस, यू आर गेटिंग स्पेस। अगर यस मुझे सर। मैंने -1 नहीं लगाया तो ये स्पेस आता है, ठीक है। सो एट दैट टाइम इफ यू आर नॉट अप्लाइंग -1, you can apply trim to remove extra space. Put your pointer on Raj and apply trim function before left. Not here, not here, not here, not here. उसी में लगा दो, अब शुरू में लेफ्ट के पहले, लेफ्ट के पहले लगा दो ट्रिम। एंटर। लास्ट ब्रैकेट इज ऑटो एडजस्टेबल। अब आपके पास स्पेस नहीं आएगा, इसको ड्रैग करो नीचे और कॉपी करो और पेस्ट करो दूसरी जगह। अब चेक करो स्पेस, नहीं नहीं आपने गलत कर दिया। तीनों नेम कॉपी करना है मनप्रीत, देन पेस्ट स्पेशल वैल्यू इन नेक्स्ट कॉलम। ये नहीं नहीं, पेस्ट स्पेशल वैल्यू करना था, ठीक है। Yes, put your pointer F2, press F2, you will not get any space now. ठीक है। यस सर। So गॉट इट। this is -1 का मतलब समझ में आ गया, ट्रिम का मतलब समझ में आ गया, एक्स्ट्रा स्पेस को कट करने के लिए यूज होता है। इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ट्रिम फंक्शन इज यूज टू कट योर एक्स्ट्रा स्पेसेस। ओके, ब्लैंक्स। now next function is last name. So you need to pick last name in 3 words name. 3 words के नेम में आपको लास्ट नेम अगर पिक करना है, देन यू नीड टू अप्लाई डबल फाइंड। अब मैं खुद से बताता हूं, ठीक है, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। अप्रोच सेम है, टोटल लेंथ, पोजीशन ऑफ सेकेंड स्पेस। ओके, सो गिव मी कंट्रोल, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू। Okay, now here I'm just applying same approach, equal to left, not left, sorry, length, equal to length. Take reference of this, bracket close, enter. This is a total length of each name. Okay, now you need to take position of second space. पोजीशन ऑफ सेकेंड स्पेस को निकालने के लिए आप अगर यहाँ पे लगाओ तो इक्वल टू फाइंड या सर्च भी लगा सकते हो। ओके, ये ब्लैंक लिया, कॉमा लगाया, देन आई एम टेकिंग रेफरेंस ऑफ राजकुमार सहरावत। अब यहाँ पे अगर मैं एंटर कर देता हूं तो फर्स्ट ब्लैंक का पोजीशन देगा ये। सो यू कैन सी हियर यू आर गेटिंग पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्लैंक, ठीक है। लेकिन मुझे फर्स्ट ब्लैंक का पोजीशन नहीं चाहिए। इन दिस सिनेरियो आपको जो अभी ये क्या कर रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर से वो ढूंढ रहा है कि स्पेस का पोजीशन कहाँ आ रहा है। मुझे स्पेस का पोजीशन जो ढूंढना है फर्स्ट ब्लैंक के बाद से ढूंढना है, ठीक है। तो सेकंड ब्लैंक का पोजीशन तभी देगा जब फर्स्ट ब्लैंक के बाद से आप ढूंढना स्टार्ट करोगे। अभी आप यहाँ पे देखो, थर्ड पैरामीटर जो फाइंड का है डिफॉल्ट 1 ले रहा है। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट कहाँ से करना है ढूंढना। तो मुझे स्टार्ट करना है फर्स्ट ब्लैंक के बाद से, तो आई नीड टू अप्लाई वन मोर फाइंड and take reference of name. Oh sorry, इसका रेफरेंस ले लिया, ब्रैकेट क्लोज करो, +1। अब क्या होगा, इस फाइंड का फर्स्ट वाले फाइंड का जो स्टार्ट नंबर होगा फर्स्ट ब्लैंक के बाद से होगा, मतलब ये के से होगा, इसमें भी के से होगा, इसमें पी से होगा, तो वो सेकेंड स्पेस का पोजीशन देगा। ओके, नाउ यू आर गेटिंग पोजीशन ऑफ सेकेंड स्पेस, ठीक है। +1 का मतलब दोबारा समझाना सर। +1 का मतलब होता है कि ये वाला पोजीशन आपने निकाला इस फाइंड से, ये वाला पोजीशन स्पेस का +1 कर दिया तो के से वो स्टार्ट हुआ। अगर ये वाला पोजीशन का आपने
पोजीशन निकाला है ये वाला पोजीशन निकाल दिया। सेकंड वाले फाइंड से ये वाला पोजीशन निकल रहा है, आपको स्टार्ट करना है सेकंड वाला फर्स्ट वाला पोजीशन के बाद से। तो यहां से अगर स्टार्ट करने हैं तो ये +1 करोगे ना। -1 इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसके पीछे से लेना। हाँ, +1 इसलिए कर रहे हैं कि ये वाला फाइंड हमारा क्या कर रहा है, फर्स्ट स्पेस का पोजीशन दे रहा है, +1 करने से ये स्टार्ट, इस वाले फाइंड का जो स्टार्ट नंबर हो रहा है वो फर्स्ट ब्लैंक के बाद से हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट ब्लैंक है, +1 करने से फर्स्ट ब्लैंक के बाद से हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके बताता हूँ, ये बहुत समझ आ गई इंपॉर्टेंट मुझे। आ गया। हाँ जी, हाँ जी। एक बार मैं जहाँ पे फिर से उसकी बता, सेकंड ब्लैंक खत्म हो रही है, उसके जो हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करेगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, अभी रुको, मैं एक बार और फिर से बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल फाइंड लगाते हो, कॉमा, यू आर टेकिंग रेफरेंस, तो बाय डिफॉल्ट ये जो ढूंढना स्टार्ट करता है ब्लैंक का पोजीशन फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आई एम नॉट टेकिंग एनी स्टार्ट नंबर, बट बाय डिफॉल्ट इट्स टेकिंग फर्स्ट नंबर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट से राइट जाएगा। हाँ, लेफ्ट से फर्स्ट कैरेक्टर से वो ढूंढना स्टार्ट करेगा। मैं यहाँ पे 1 भी कर दूंगा तो वही फर्स्ट ब्लैंक का पोजीशन देगा, 2 भी कर दूंगा तो वही फर्स्ट ब्लैंक का पोजीशन देगा। ठीक है, क्योंकि ये अब 2 अगर मैंने किया तो ए से स्टार्ट किया ढूंढना। ठीक है, अगर मैं 3 भी करूंगा, 3 भी करूंगा तो वो फर्स्ट ब्लैंक का पोजीशन देगा, फर्स्ट ब्लैंक का ही पोजीशन मिलेगा। 4 भी करूंगा, 4 में आपका ब्लैंक का से वो ढूंढना स्टार्ट करेगा, ब्लैंक से ढूंढेगा तो इसी ब्लैंक का पोजीशन दे देगा। ठीक है, लेकिन मेरा जब स्टार्ट करेगा फर्स्ट ब्लैंक के बाद से, देखो ये फर्स्ट ब्लैंक तक ही दे रहा है। अब मैं अगर 1/5 से स्टार्ट करूं ढूंढना, मैंने ये 5th से स्टार्ट किया, इस फाइंड का जो स्टार्ट नंबर है 5th से स्टार्ट किया। 5th से स्टार्ट किया मतलब के से स्टार्ट किया, इस के से, इसे के से स्टार्ट करोगे तो यहाँ का पोजीशन देगा, इस वाले ब्लैंक का। ठीक है, अब देखो इस वाले ब्लैंक का पोजीशन दे दिया। क्लियर है, तो ये जो 5th मैं ला रहा हूं उसी फर्स्ट ब्लैंक का पोजीशन निकाल के +1 कर रहा हूं। फाइंड ब्लैंक का पोजीशन लेना है, ठीक है, और ब्लैंक का पोजीशन ब्रैकेट क्लोज करके +1। ठीक है, एंटर करो, यू आर गेटिंग पोजीशन ऑफ सेकेंड स्पेस। ठीक है, क्लियर है। जी सर। तो अब ये वाला हमें क्या करना है, टोटल लेंथ में पोजीशन माइनस करना है सेकेंड स्पेस का। यू नीड टू टेक हियर टोटल लेंथ माइनस पोजीशन ऑफ सेकेंड स्पेस, एंटर। दिस मच कैरेक्टर यू नीड टू पिक फ्रॉम राइट साइड। देखो 8 कैरेक्टर में सहरावत उठ जाएगा, सिंह उठ जाएगा, 5 कैरेक्टर में झा उठ जाएगा, 3 कैरेक्टर में। ठीक है, अब इस तीनों को एक साथ लगाना है, ये जो मैंने तीनों अलग अलग लगाया इसको एक साथ लगाना है। के अंदर ही वो दोनों फंक्शन आएंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे लगाओ राइट। ठीक है, जो मैंने अभी बताया ना, राइट लगा लिया। अब राइट में कितने कैरेक्टर पिक करना है तो वो डिसाइड करने के लिए आप यहाँ पे लेंथ निकालोगे, लेंथ ब्रैकेट क्लोज माइनस पोजीशन ऑफ सेकेंड स्पेस। पोजीशन ऑफ सेकेंड स्पेस के लिए फाइंड लगाओगे, पहला फाइंड। ठीक है, कॉमा, टेक रेफरेंस ऑफ दिस, कॉमा। अब स्टार्ट नंबर 1 से नहीं स्टार्ट करके फर्स्ट वाला फाइंड करो, ब्लैंक्स का पोजीशन निकालो, फर्स्ट वाला +1 कर दो। तो मैं फिर से फाइंड लगाया, ब्लैंक फर्स्ट वाला ब्लैंक का पोजीशन निकाला और उसमें फर्स्ट वाले ब्लैंक का पोजीशन निकाल के +1 कर दिया। तो एंटर करोगे तो ये हमारा, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ। ब्रेसेस ने डाली ना उसमें। अच्छा अच्छा, हम ब्रेसेस निकाल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर। सर वो फाइंड के आगे आपने ब्रैकेट सेकंड वाले फाइंड के आगे भी सर। ओके ओके ओके, सब में ऐसे कैसे छूट गया। ठीक है,
ये लो आ गया लास्ट नेम। ये अप्रोच आपको तब लगाना है जब 3 वर्ड्स का नाम हो, ठीक है। जब 3 वर्ड्स का नाम हो तब यहाँ पे डबल फाइंड लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना, नहीं तो एक फाइंड से हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। Got it, sir. फिर से बताऊं इसे, नहीं सर समझ आ गया। किसी और को कोई डाउट है तो मैं फिर से बता दूंगा ये, क्योंकि ये चीज समझ में आ गया ना, सेकंड स्पेस का पोजीशन निकालना, तो मिडिल नेम आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मिडिल नेम इज मोर डिफिकल्ट देन ऑल द नेम्स, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम से बहुत ज्यादा हार्ड है मिडिल नेम। सेकंड स्पेस का पोजीशन निकालना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। सेकंड स्पेस का पोजीशन एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कोर्स कर रहा हूँ ये सीखने के लिए, सेकंड स्पेस का पोजीशन, क्योंकि सेकंड स्पेस का पोजीशन निकालना होगा यहाँ पे, और 4 फाइंड लगेगा मिडिल नेम को निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से बताता हूँ, एक बार ध्यान से देखो, आप भी, हो सकता है आपको समझ में आया, औरों को नहीं आया, पूछ नहीं रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ इसको। इक्वल टू फाइंड, अगर नॉर्मल एक फाइंड आप लगाते हो और स्टार्ट नंबर आप कुछ भी नहीं देते हो, स्टार्ट नंबर, अब देखो इसके बाद वाला जो पैरामीटर है वो ऑप्शनल पैरामीटर, हाँ। अब मुझे ये बताओ, ऑप्शनल पैरामीटर और मैंडेटरी पैरामीटर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कोई भी बता सकता है। क्या बोल रहे ऑप्शनल होना राउंड स्क्वायर ब्रैकेट में दे रखी है। यस यस, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर मैं ऑप्शनल पैरामीटर नहीं भी दूंगा तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। अभी स्टार्ट नंबर अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट कैरेक्टर से ढूंढना स्टार्ट करेगा, अगर फर्स्ट कैरेक्टर से ढूंढना स्टार्ट करेगा तो उसको ब्लैंक जो मिलेगा यहाँ मिलेगा, राइट, यहाँ मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा, राइट। लेकिन मुझे ये वाला ब्लैंक नहीं ढूंढना है, मुझे ढूंढना है सेकेंड ब्लैंक, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो 1 से स्टार्ट कर रहा है ढूंढना, उसको मुझे स्टार्ट करना होगा फर्स्ट ब्लैंक के बाद से। तो मैं यहाँ पे करूंगा, फिर से फाइंड लगाऊंगा, फर्स्ट ब्लैंक का पोजीशन निकाल के +1 कर दूंगा। ये फर्स्ट ब्लैंक का पोजीशन निकाला, ओह सॉरी, ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक का पोजीशन निकाला, तो इस वाले फाइंड का जो होगा स्टार्ट नंबर जो होगा वो फर्स्ट ब्लैंक के बाद से होगा। इस वाले स्टार्ट वाला फाइंड का जो स्टार्ट नंबर होगा फर्स्ट ब्लैंक के बाद से होगा, तो फर्स्ट ब्लैंक का पोजीशन निकाल के +1 कर दिया। तो इस फाइंड में जो स्टार्ट नंबर होगा वो K से स्टार्ट करेगा, इसमें भी K से, इसमें P से स्टार्ट करेगा ढूंढना। जब P से स्टार्ट करेगा तो ये वाला ब्लैंक उसको मिलेगा, ये वाला ब्लैंक मिलेगा, इसमें ये वाला ब्लैंक मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंड ब्लैंक का पोजीशन आ गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ब्लैंक का अप्रोच। हाँ बोलो। फाइंड लगाया, ऐसे मल्टीपल फाइंड्स भी ऐसे लग सकते हैं क्या फिर? हाँ हाँ, अभी बताऊंगा मिडिल नेम में, ठीक है।